एंड इसमें लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट सेक्टर्स, देन वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द सेक्टर, फिर उसके बाद नाउ लाइक यू विल गो टू द स्टॉक्स. Yes. अभी नाउ यू डू टेक्निकल एनालिसिस एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस. Yes. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप पहले क्या करोगे, एंड देन कैन यू वॉक अस थ्रू द फ्रेमवर्क कि ओके फंडामेंटल फिर Yes. टेक्निकल, और Yes. कैसे करोगे इंडिविजुअली? Perfect. So basically, I do two parts into my overall framework. One is called satellite. तो satellite आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई इमर्जिंग खिलाड़ी है. जैसे IPL होता है, उसमें एक कोहली भी होता है, सचिन तेंदुलकर भी होता है, आपका धोनी भी होता है, और कुछ 3-4 नए प्लेयर आते हैं. तो 3-4 नए प्लेयर को हम लोग कैसे करते हैं कि भाई तू 4-5 मैच खेल, फिर देखेंगे कैसा परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा टाइम देंगे उसको. अगर फिर भी नहीं परफॉर्म किया तो क्या होता है, वो रिप्लेस हो जाता है, नया प्लेयर आ जाता है. बट कोहली अगर आता है और 5 मैच नहीं खेलता है, तो उसको हम नहीं बोलेंगे भाई छोड़ दे भाई, आईपीएल तुम्हारा नहीं अभी हो पाएगा. दैट इज नॉट हाउ वी डू, राइट? प्रैक्टिकली आई एम जस्ट गिविंग अ ग्राउंड लेवल एग्जांपल. तो सेम चीज पोर्टफोलियो में भी होनी चाहिए, राइट? कि आपका कोई इमर्जिंग सेक्टर है, इमर्जिंग कंपनी है विच वाज नॉट डूइंग सो वेल, उसका या तो सेक्टर टेलविंड्स नहीं था, और दे वेर पर्सनली एज अ कंपनी वेर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ हेडविंड्स, या फिर वो कंपनी छोटी थी, अभी इवॉल्व कर रही है, मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, या फिर मोर कॉर्पोरेटाइज हो रही है. सो ऑल दोस प्लेस, एंड इवन साइक्लिकल फॉर दैट मैटर, राइट? सो कंपनीज विच आर इन स्टील सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, ऑल द साइक्लिकल प्लेस, that is all satellite. Basically, you test it. If it works, great. You make a lot of money in a very short period of time. And one of the example which I gave, HEG, was a similar play, right? Which was into graphite electrode. तब क्या हुआ था, एक चाइना में बहुत बड़ा प्लांट था, वो शट डाउन हो गया था. So there was a big China या US में, I don't remember exactly. I think US, there was one of the very big company which got shut down. And suddenly there was this price volume action that started. तो यहाँ पे अचानक से प्राइस वॉल्यूम स्पाइक हो गया, एंड दिस वाज अ वन वे रैली. एक्चुअली इट वाज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्ले टू एग्जीक्यूट, अनलेस कि भाई आप जल्दी प्रॉफिट बुक कर लोगे, ओ 6 महीने में इतना बन गया, 2 महीने में इतना बन गया, देन इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी. बट इट वाज अ वन वे मूव, बिकॉज the demand suddenly spiked up, the supply got shut down very quickly. So in those kind of situation, you cannot play it कि यार मैं buy and hold करूंगा, इसमें मैं भूल जाऊंगा लेके, then the story is over. So all these plays which are cyclical or we are experimenting, ये चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं है, those are all satellite, and that is like 30% of the thing. And if you get good winners, like जैसे green energy में हुआ, railways is also a satellite play, defense is also a satellite play. If you get some winners, in few years you can get 5-10x also. And the core is what I gave the example of fish and pot, where you are looking for 10 to 15 high quality companies. These are consistent compounders, and if nothing goes wrong, you want to continue to ride it. Like unless there is some issue or degrowth or very high valuation, you want to ride it for a very long period of time. So this is the combination which I practice, right? So that is how it is. So I'll show you practically fundamental analysis how I do. And I have shared the tools on my website itself, so anybody who wants, they can freely check it out. So on my website, I've put a tool in the tools section. So if anyone wants to pick it, they can just download all the things. But I'll just show you live how I do it. So let's say this is APAR Industry, and you can also upload that in the screener template. So I've made a screener friendly template, and it's freely available to all of you. So जैसे APAR Industry का है, so this is the Excel which are there. So first I want to see what is the long term history of the company, कि भाई ये कंपनी ने पहले डिलीवर किया है कि नहीं, ये कोहली है कि विराट कोहली है कि फिर कोई नया प्लेयर है, राइट? सो आई वांट टू सी लाइक इन लास्ट 8-9 years what they have done, how consistent they have been, उनके मार्जिन्स कैसे है, आर दे हैविंग अ गुड ऑपरेटिंग मार्जिन विच आर सस्टेनेबल, व्हाट इज देयर वर्किंग कैपिटल साइकिल, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो उससे मुझे आइडिया आ जाता है कि दिस इज लाइक अ टू मच साइक्लिकल बिजनेस, या फिर लॉन्ग टर्म प्ले, या फिर इसमें लॉन्ग टर्म ही प्ले करना है कि शॉर्ट टर्म प्ले करना है. सो दिस इज द एक्सेल व्हिच आई यूज. अपार्ट फ्रॉम दैट, सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक बार इंटरप्रेट करके दिखाओगे, then yes, how do you interpret yes, these I'll data? show it to you. So couple of key things which I use, I have actually documented here, is this. Okay, so this is called machine. So being an engineer, mechanical engineer, I thought कि यार सब इतनी सारी बुक्स है, इतने सारे वीडियोस है, उसका एक फॉर्मूला में उसको कंडेंस कर देते हैं. And this again, thanks to Malar also, he was in our team that time.
एंड हमने साथ में बैठ के सोचा कि यार इतने सारे पैरामीटर्स है, उसको कंडेंस कैसे किया जाए, राइट? सो दीज आर द 7 थिंग्स विच वी check actually. So we'll go deeper also into this. First I want to see mega tailwinds और trends कि भाई ये कंपनी जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उसमें ओवरऑल स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स क्या क्या है. सो से फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एशियन पेंट्स और पीडीलाइट और पॉलीकैब काइंड ऑफ कंपनीज, वन ऑफ द वेरी बिग प्ले विच इज अंडरलाइंग मेगा ट्रेंड दैट इज गोइंग ऑन इज फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी. कि जो वीक प्लेयर्स है वो जीएसटी कंप्लायंस, ई इनवॉइसिंग ये सब में कंप्लाई नहीं कर पा रहे, उनको काफी फ्रिक्शन आ रहा है. कैश बेस्ड इकोनॉमी थी वो अभी फ्रिक्शन आ रहा है. तो हाउ दीज players can get benefit. So formalization of economy is one trend. काफी सारी कंपनीज है जिसको डिजिटलाइजेशन से फायदा होता है, बट डिजिटलाइजेशन इज अ मेगा ट्रेंड. 10 साल के बाद यहां से भी हम तेजी से आगे एक्सेलरेट करने वाले हैं. सो फाइंड सच मेगा ट्रेंड्स और टेलविंड्स दैट इज हेल्पिंग दैट कंपनी ब्रॉडली कि भाई इसमें कुछ ऐसा है कि नहीं. सेकेंड आई वॉन्ट टू सी इज द ओवरऑल sales growth of the company, because the most sustainable thing for a company for a long term growth is sales. बिकॉज आप मार्जिन कितना ही एक्सपांड करोगे, आप ऑपरेटिंग लिवरेज कितना ही लिवरेज करोगे, राइट? 100% के बाद तो कैपेसिटी खत्म हो गया, आपको नया कैपेक्स डालना ही है. सो ओनली थिंग दैट इज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इज सेल्स. तो मुझे वो सबसे पहले मैं देखता हूं अगर मेरा वो कोर स्टॉक है कि लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ कैसा है मेरा, एंड इज इट लाइक एटलीस्ट इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी. अगर मेरा 12-13% सेल्स ग्रोथ नहीं है तो it is not going to give me that 20-25% compounding, right? So that is the first thing which I see. The second thing which I see is action, which is like any institution कोई enter हुआ है या फिर उसमें कोई प्राइस वॉल्यूम एक्शन आ रहा है. तो जैसे फॉर एग्जांपल अपार इंडस्ट्री में when there was this lack of capacity, if you see this area specifically, there was a huge demand and it started breaking out. For the first time it started making new all-time high here. So this was a breakout zone. So here it will come in my screen also, which I showed this ride winner screen, where any sector which is breaking out and where there is a price volume action, तो फिर उसको ड्रिल डाउन करोगे भाई ये अपार इंडस्ट्री में ऐसा अब क्या हो गया कि ये अचानक से ऑल टाइम हाई मार रहा है. यहाँ पे ऐसा क्या डिमांड जनरेट हुआ कि इतने सारे इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड टू बाय इन. एंड प्रॉब्लम क्या होता है, दिस आई मेड मिस्टेक माई सेल्फ ऑल्सो. जब कंपनी 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई करती है हमें डर लगने लगता है कि यार ये तो ओवर वैल्यूएशन होगा. अच्छा, अपार इंडस्ट्री और ये सब के स्टॉक प्राइजेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब 10,000 20,000 के प्राइस. अभी जैसे आप देखोगे तो 10,000 12,000 का प्राइजेस जाके आया. सो फियर कम्स इन कि यार इतना महंगा शेयर नया हाई मार रहा है, ये तो बेचने का टाइम है, इसको लेने का क्या सोचना है इसको. बट दोज आर द times when something is shifting inside the company, earnings growth aa raha hai, something is changing in the sector, some tailwinds are coming. So this maturity was not there earlier when I started off, but अब वो maturity आ गई है कि नया all time high भी मारता है तो उसको ignore नहीं करना है. In fact, if a company makes a multi-bagger 50x 100x, so it has to make a lot of all time highs in its journey, right? And without that you cannot have a multi-bagger. तो वो mindset आ गया. So when this kind of price volume action happens, then you start going back to your fundamental table कि हाँ अब यहाँ कंपनी में क्या shift हुआ है, what has changed, right? So if this is like June 2022, you start going into quarterly results and try to see what has changed, what is shifting inside this, right? और उसमें अगर ग्रोथ सडनली आ रहा है, काफी कंपनीज में क्या होता है कि एक ग्रोथ स्टेगनेंट हो गया आपका एंड सडनली कुछ ट्रिगर आया एंड योर ग्रोथ सडनली स्पाइक. सो यू ट्राई टू सी दैट. थर्ड इज योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. नाउ हाउ विल यू नो कि कोई कंपनी एक्सेप्शनल है? यू विल नो ओनली व्हेन इट हैज अ ग्रेट प्राइसिंग पावर कि भाई उसका कॉम्पिटिटर वो चार्ज नहीं कर पा रहा है, बट आप छाती ठोक के सीना तान के चार्ज कर रहे हो आपके कस्टमर से, आपके सप्लायर के साथ आपके बहुत ही अच्छे टर्म्स है, आपके मार्जिन अच्छे हैं, राइट? सो योर ऑपरेटिंग मार्जिन इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर कि देयर इज समथिंग रियली गुड हैपनिंग इनसाइड द कंपनी. सो सम ऑफ द थिंग्स व्हिच I check for competitive advantages. How good are the margin? I want to see at least around 8% kind of margins. I also want to see what are my receivable trends, and I've color coded this beautifully. Engineer and also worked in Infosys, तो काफी सारे ये सब automation किए हुए हैं. So all of you can leverage this. You can just simply download and keep using it. And we do
upgrades also of this Excel. It is freely available for all the investors out there. क्या बेसिस पे ग्रीन और रेड है? So basically increase अगर होता है, मतलब अगर आपका working receivable days कम हो रहा है, it is actually good. तो अगर क्योंकि पैसा जल्दी consecutively आएगा। हाँ तो पैसा जल्दी आ रहा है तो वो ग्रीन हो जाएगा. अगर वो ग्रीन से फिर रेड होता है मतलब वहां पे रेशियो में कोई प्रॉब्लम, मतलब इट हैज गॉन अप फ्रॉम 73. अच्छा, तो ग्रीन और रेड इन कंपैरिजन विद द प्रीवियस क्वार्टर. यस. सो यहाँ पे ईयर्स है, सेम वे क्वार्टरली में क्वार्टरली ट्रेंड है. सो इफ इट इज इंप्रूविंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर, इट विल बिकम ग्रीन. एंड कुछ रेशियोज में ऐसा होता है कि इंक्रीज हो तो अच्छा है, जैसे ROE ROC हो गया. कुछ रेशियो में ऐसा है कि डिक्रीज हो तो अच्छा है, राइट. सो से फॉर एग्जांपल ऑल योर रिसीवेबल्स, तो उसमें कम होता है, दैट इज बेटर. सो देन आई चेक ब्रॉडली कि भाई रिसीवेबल्स में क्या इश्यूज है कि नहीं. I also want to check most important thing, whether my cash flows are converting into profits. Like profits are converting into cash flow from operations. What is the conversion percentage? So all these things I check, and I also like to do DuPont analysis. कि broadly भाई ये वॉल्यूम गेम है, डीमार्ट जैसा है, कि फिर कोई प्रीमियमाइजेशन प्ले है या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. सो इफ आई हैव हाई प्रॉफिट मार्जिन्स, जनरली इट इज अ प्रीमियमाइजेशन प्ले. बट इफ आई हैव हाई एसेट टर्न्स, आई नो कि वो पूरा अपना फैक्ट्री स्क्वीज करके जितना हो सके वॉल्यूम निकालता है. सो दैट आई गेट टू नो फ्रॉम दीज थिंग्स. ये एक बार डिटेल में एक्सप्लेन करोगे? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. सो लाइक 3 स्टेज मॉडल क्या है एंड व्हाट इज ईच पैरामीटर? सो बेसिकली यू नो डूपॉन्ट इज ब्रेकअप ऑफ ROE, कि आपका रिटर्न हो रहा है, जितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आपका धंधा कहां से रिटर्न ला रहा है. मतलब आप 10% मार्जिन वाला एक बिजनेस कर सकते हो एंड यू कैन हैव लेसर ऑफ चर्न एंड स्टिल यू कैन मेक मनी. अगर आप से फॉर एग्जांपल गुची बैग सेल कर रहे हो, 70% मार्जिन है, उसको आपको डीमार्ट की तरह 1000 बैग्स एवरीडे नहीं बेचने हैं. वो 70% मार्जिन वाला एक बैग भी आपने बेच दिया तो यू विल मेक गुड रिटर्न ऑन योर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट विच यू हैव डन. बट सपोज डीमार्ट है, तो डीमार्ट क्या करेगा? दे विल हैव अ वेफर थिन मार्जिन, बट दे वांट टू चर्न द इन्वेंट्री वेरी क्विकली. एंड सेम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कि किसी का अगर प्लांट है जो सील का प्लांट है या सीमेंट का प्लांट है, वो जितना ओवर टाइम करके उसको चलाएगा, एफिशिएंटली चलाएगा और उसके एसेट स्क्वीज करेगा, उतना उसको फायदा है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमीज ऑफ स्केल. So the net profit margin, the higher the significance would be that it's a premiumization play. And asset turnover, the higher asset turnover will show you that they are squeezing their assets, and that is what is the factor for generating ROE. So ये पूरा model है. And five factor is just splitting it further. वो इतना important नहीं है. The 3 stage model is more than sufficient for you to get an idea कि क्या हो रहा है कंपनी में. And then I also see overall graph trend क्या हो रहा है. And most important, ROC मेरा अगर long term play है, core companies है, it should be at least 15%. और at least I should have confidence कि हाँ छोटा मोटा temporary effect है, but it will cross 15%. Because otherwise I'm not creating shareholders value. अगर मैं grow भी कर रहा हूँ, but अगर मेरा cost of capital मीट नहीं हो पा रहा है, मैं 10% पे बोरो कर रहा हूँ और 11% बना रहा हूँ, तो क्या ही शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट किया, राइट. सो आई वांट टू एटलीस्ट सी के 15% ROE ROC इज मेंटेन. सो दैट ऑल थिंग्स आई चेक इट फ्रॉम द ग्राफ, जस्ट लाइक अ बर्ड्स आई व्यू कि हाँ भाई ठीक ठाक है कि नहीं. सो दिस इज लाइक ब्रॉड एनालिसिस विच आई डू. एंड देन आई वांट टू सी improvements in the company, that what has changed. There are multiple things that can improve, right? It can be distribution can improve, the management quality can improve, efficiency can improve, a lot of improvements can happen. And what is new that is happening, मतलब कोई कंपनी नए प्रोडक्ट में जा रही है, नई कैटेगरी में जा रही है, नए ज्योग्राफी में जा रही है, राइट. सो दैट इज समथिंग आई सी. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई जॉकी कैसा है, राइट. बैट तो MRF का है, बट कौन चला रहा है वो, राइट. अच्छी कंपनी इन द हैंड्स ऑफ बैड प्रमोटर might not be a good way to compound, जैसे BSNL में हुआ, right. So BSNL and Airtel both had a great sector tailwind back in 2000 to 2010 when just telecom boom came in. BSNL could not materialize, it almost went bankrupt, and Airtel bloomed like anything, right. Opportunity दोनों के पास थी, capital दोनों के पास था, but that management drive was missing. So that is again most important thing कि अगर आपका बल्लेबाजी नहीं है अच्छा, तो बैट कितना भी अच्छा हो,
It's not going to work. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.